fact of the matter is that when you look at these people, they are going to compete with you. But इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. अब हमें इनसे आगे निकलना है. अगर हम इन पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स वाले ग्रुप से आगे निकल गए तो हमारा बहुत अच्छा चांस है. थिंक अबाउट दिस वन थिंग. अगर हमने ये पाथ फॉलो नहीं किया होता MMP प्लस का या मीन्स रेडी बाय दिसंबर का, और मान लो आप मुझे नहीं जानते, तो क्या होता इन 6 महीनों में? दिस टूल इज मेंट टू एग्जैक्टली फाइंड आउट योर प्रॉब्लम. कि यार आपकी प्रॉब्लम सोर्स में थी, या आपके रीडिंग टेक्निक में थी, या आपकी MCQ सॉल्विंग में थी, या आपकी सिली मिस्टेक्स में थी. कहाँ प्रॉब्लम थी उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा. एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट. पूजा, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग वो कह रही हैं कि मैंने किसी एक कोचिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ा है. आई नो विच कोचिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, बट मैं नाम नहीं लूंगा. मैंने किसी कोचिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और आपके टेस्ट के क्वेश्चन में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूँ ना इकोनॉमिक्स में, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ. अब वही दिक्कत है. लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है. रट के आगे बढ़ने से बात नहीं बनती है इकोनॉमिक्स में. आपने मेंस में भी देख लिया होगा. हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन where we are going to plan our strategy ahead for the upcoming few months. Very good afternoon to all of you. This session today is about everybody who has been preparing for means for the past 5 to 6 months. देखिए, हम सब means की तैयारी कर रहे हैं 5-6 महीने से, and of course it has been a long journey, है ना. Now the time is to bring it to its logical conclusion. How do you bring it to its logical conclusion? You think about what we are going to do from here. Now, I understand there are a lot of challenges like backlogs, burnout, fatigue. There's an unclear path ahead, and there are a lot of issues that we have to address. And in this session, we will deal with all of those things. सारी बातों के बारे में बात करेंगे. सारी issues को हम address करेंगे. I just want you to listen to me for the next 30 minutes. So that we can figure out कि आगे हमारा प्लान क्या होने वाला है. Now, all of you here who were part of MMP Plus, and even generally people who were following Means Ready by December or Write Smart or any of these initiatives, जो basically December तक ये attempt कर रहे थे, चाहे सारथी आईएएस के साथ, चाहे सारथी आईएएस के बिना, आप ये attempt कर रहे थे कि हमें अपना means complete करना है by the end of December or by the mid of December. We are in December now. When we started out, we had thought to ourselves that there is a target of 5 out of 7 papers, right? Means में 7 papers हैं जो scoring है. हमने सोचा था हम 5 अगर कर लेंगे तो we are in a very good place. अब वो 5 कौन से थे? मैंने आपको recommend किया था that it would be better अगर आप GS में GS 2, 3 और 4 broadly cover कर लें, and optional में आप अपना paper 1 और paper 2 cover कर लें. Now, what does covering mean? कवर करने का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ मैंने रीड करके छोड़ दिया. कवर करने का मतलब था कि GS में what I would be doing is that I would be reading all the content, that I would read all the content, then I would write PYQs and I would write live answer writing sessions. अगर ये आपने कर लिया है, PYQs and new questions, basically यहाँ पर आपने Write Smart के साथ PYQs कवर किए और Lost में आपने actually सिर्फ attempt नहीं किया, but you also wrote the questions down yourself in your own notebook when the timer was running on the screen. If you've done all of this, that means broadly a subject is covered. Optional में criteria थोड़ा सा different था. मैंने आपको कहा था कि अगर आप सारी classes कर लोगे, basically हम इस state पे आ जाएं कि next year pre के बाद कोई videos देखने को ना हो, कोई ऐसा ना हो, कोई major book पढ़ने को रह गई है. If we basically have this situation where all of our content is complete, we would be in a place where we can say that yes, our optional is also covered. ये 5 out of 7 का टारगेट लेके हम चले थे. 15 दिसंबर तक हमने सोचा था हम करेंगे. From सारथी आईएएस side, we have delivered on almost everything. 1 or 2 things here and there थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. कभी कोई सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा लग गया, कभी कम लग गया. But from our side, we have delivered everything, right? And we have delivered it to the highest quality also. I think all of you would agree that the content that you get here is not something you can emulate anywhere else. आपने अगर GS3, GS2, GS4 का content देखा हो, I'm sure you'll all agree that it is top-notch content. But of course, this was not an easy feat to accomplish. ये करके हमने किया क्या है? By setting this target, we have ensured that next year, if we clear prelims, we are going to be ahead of 90% of the people जिन्होंने पहले means नहीं दिया. Basically, अगर हमारा इस साल प्री नहीं हुआ तो हमें मेंस लिखने का मौका नहीं मिला. अगर हमें मेंस लिखने का मौका नहीं मिला तो हमारी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती मेंस की. If we have achieved this target or even 80% of this target,
वी हैव इंश्योर्ड दैट नेक्स्ट ईयर वी आर द सेम एज समबडी हु गेव मेंस दिस ईयर। जैसे किसी ने 2025 में मेंस दिया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी 2026 में अटेम्प्ट देंगे, आप भी 2026 में अटेम्प्ट देंगे, बट आप उनके कहीं भी पीछे नहीं है अगर आपने ये 5 out of 7 टारगेट अचीव कर लिया, राइट। फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू पीपल, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर प्रिपरेशन हियर? ये 5 out of 7 में जो बोर्ड पे लिखा है, इसमें से कितने % आपने अचीव कर लिया है? आई एम नॉट, यहां पर कहीं पे रिविजन नहीं लिखा है, यहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपको सब याद होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या लिखा है कि मुझे एक बार पढ़ लेना है सब कुछ, और उसके PYQ यानी कि राइट स्मार्ट और लॉज अटेंड करने हैं। देखो, अगर ये नंबर समवेयर क्लोज टू 70% है तो यू आर वेरी मच इन द रेस। देखो, ये चीज यहां पर अगर किसी ने पहले मीन्स दिया होगा तो ये बात को वो वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आप प्री और मेंस के बीच का वो 3 महीने का टाइम देखो, इन दोज 3 months योर एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल्स। What you would normally do in 3 months, उसका डबल आप अचीव करते हो। So even if we are at 4 out of 7, 3.5 out of 7, we are in a good place, right? But ये सारी मेहनत, ये जितनी भी मेहनत हमने यहाँ पर करी है, 70%, 80%, most लोगों ने कहा that they have done 4 out of 7 papers, which is also decent. But ये सारी मेहनत will go to waste if we now don't use the next 5 months properly. आप कहोगे सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, पहले आप कह रहे थे कि अगले साल अगर यू हैव टू सक्सीड तो आपको अगले 5 महीने ढंग से मेहनत करनी है। अब आप कह रहे हो कि अगर उन 5 महीने की मेहनत को यूज करना है तो अगले 5 महीने 6 महीने ढंग से मेहनत करनी है। बट द प्रॉब्लम इज द एग्जाम इज सच, इतना लंबा और इतना टफ एग्जाम है, मल्टीपल स्टेजेस हैं और हर स्टेज डिफिकल्ट है। अभी मेंस का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा ही होगा, देयर वर सो मेनी पीपल हु डिडंट मेक इट। आई आल्सो हेल्ड अ सेशन ऑन यूट्यूब फॉर देम। There is difficulty in this exam. It's not going to be easy. आसान नहीं है, मुश्किल है, difficult है, और कुछ नहीं कर सकते हम other than the fact that we have to work immensely hard. Now the fact of the matter is that whatever targets we have achieved, I would strongly recommend that all of you start transitioning towards prelims. What do you mean by transition? Transition का मतलब ये नहीं है कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया और कल से स्टार्ट कर दिया कि यार अब से मैं प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं। नो, दैट्स नॉट व्हाट ट्रांजिशन मींस। मेरा ट्रांजिशन से आप लोगों को ये कहना है दैट इफ यू आर स्टार्टिंग टू ट्रांजिशन, you must then think that I will divide my day into 2 parts, and for the month of December we can do this. दिसंबर मंथ में ये काम किया जा सकता है कि अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, नॉट इक्वली। I would say 60% of your day should go to prelims and 40% of your day should go to mains. December is going to be a very difficult month. हमें ज्यादा पढ़ाई करनी होगी than normal in December. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझना that in these months, these are the months that we have left: December, January, Feb, March and April. ये जो 2 मंथ्स है ना यार, एंड देन ऑफ कोर्स मई में तो चलो सब पढ़ाई करेंगे ही। इन 2 मंथ्स में आपको दिखेगा दैट एवरीबडी इज वर्किंग रियली हार्ड, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, बिकॉज एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया होता है, दिखने लग जाता है। आई ऑल्सो से दिस दैट 31 दिसंबर और 1 जनवरी में बहुत फर्क होता है। 31 दिसंबर को ना एग्जाम अगले साल होता है और 1 जनवरी को एग्जाम उसी साल होता है। तो इन 2 डेट्स में ऑल्दो 24 घंटे का ही फर्क है, बट वैसे बहुत बड़ा फर्क होता है। You will see that even after 1st Feb, a lot of people will start working very, very hard to ensure that they get in, right? कि उनका प्रीलिम्स हो जाए, और कंप्लीट तो हमें सबसे करना है। हो सकता है उन्होंने पिछले 6 महीने में सिर्फ चिल किया हो, और वो ऐसे लोग हों जिन्होंने आज तक मेंस की कोई पढ़ाई नहीं करी, पता है कि मेंस देने जाएंगे तो फेल होंगे, फिर भी वो प्रीलिम्स की 4 महीने मेहनत करके आपकी मेंस की सीट में आपसे कंपीट करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर यू योरसेल्फ have been part of that group. अब जब आप लोगों ने मेंस की पढ़ाई कर ली, आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे आप लोगों ने इस साल प्रीलिम्स दिया,
you must have understood that now if you would have by chance, let's say by elimination, by some grace of God cleared prelims this year, it would have been a huge challenge for you to clear mains this year, right? But आप किसी की तो मेंस की सीट लेते. Is that true? किसी की तो मेंस की सीट जाती, even though you were not in the race. आप किसी की सीट लेके जाते. ऐसे अब और लोग भी होंगे, right? There are going to be many other people like you who are going to compete with you this year, right? So now the fact of the matter is that we cannot mess up these months. इन मंथ्स को हम मेस अप नहीं कर सकते. बट आप ही से मैं पूछता हूं कि ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग सिर्फ इन मंथ्स में पढ़ते हैं, राइट, इनको मैं कहता हूं पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स. दे आर पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स. इनको बीच बीच में याद आता है. पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि साथ में जॉब कर रहे हैं. दे आर एक्सीडेंटल एस्पिरेंट्स. पापा ने कह दिया, पेपर दे दिया, राइट, पूरे साल मजे करे, प्रीलिम्स आ गया, पढ़ाई कर लेते हैं. एंड इनमें से भी कई लोगों का क्लियर हो जाता है. प्री होता है, मींस नहीं होता है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट व्हेन यू लुक एट दीज पीपल, दे आर गोइंग टू कम्पीट विद यू. बट इनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. अब हमें इनसे आगे निकलना है. अगर हम इन पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स वाले ग्रुप से आगे निकल गए तो हमारा बहुत अच्छा चांस है. इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फेब में जागते हैं या ये जनवरी एंड में जागेंगे. अभी तो ये आराम से सो रहे हैं, राइट? एंड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स यू शुड वर्क सो दैट यू कैन बीट देम. अब इनको बीट करने के लिए हमारे पास 2 मंथ्स हैं, दिसंबर और जनवरी. अब यही आप खुद से पूछ लो, लास्ट ईयर डिड यू वर्क हार्ड इन दीज 2 मंथ्स? योर आंसर वुड बी नो. यू वुड हैव बीन स्टडिंग, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली, बट जो एक्चुअल आपकी मेहनत होगी, दैट एफर्ट मस्ट हैव कम फ्रॉम दीज 4 months, probably from these 3 months. Now to beat this part time group, we have to ensure कि इन 2 months में we have maximum effort going forward. इन 2 months में हमें अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना है. जितना ज्यादा हम सिलेबस को यहां पर कवर कर सके हमें करना है. करेक्ट? दिस इज द आइडिया. अब ये जो 2 months हैं, इन 2 months में मोस्ट लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि मेंस खत्म नहीं हुआ, प्रीलिम स्टार्ट नहीं हुआ, यू नो, सम और द अदर प्रॉब्लम दे विल फेस कि यार मेंस में बैकलॉग है तो इशू हो रहा है, प्रीलिम स्टार्ट कैसे करें, कहां से करें. बट वी हैव टू एंश्योर दैट दीज 2 months वी हैव टू पुट इन आवर मैक्सिमम एफर्ट. अब वो हम कैसे करेंगे? दिसंबर में तो हम आ ही गए. इट इज ऑलरेडी 3rd December टुडे. वी आर ऑलरेडी इन दिसंबर. तो मैं आपको कह रहा हूं कि दिसंबर मंथ I recommend that for all of you, this month should be a month of transition. Transition month जहां 60% टाइम आपका जाए प्रीलिम्स में और 40% टाइम जाए आपका मेंस में. In MMP Plus, we are going to have classes in December also. मैं खुद GS1 की राइट स्मार्ट की क्लासेस लेने वाला हूं दिसंबर में, और मैं खुद ही आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप इस टारगेट को अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, इस टारगेट को अभी तक, जैसे मान लो आपने GS 2, 3, 4 अभी तक नहीं किया है, इट्स ओके इफ यू वॉच दोस क्लासेस रिकॉर्डेड आफ्टर प्रीलिम्स. आई विल टेक देम लाइव एंड आई विल डिलीवर ऑल माय कमिटमेंट्स. मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं दैट इट्स बेटर टू कंसोलिडेट दिस रादर देन एडिंग न्यू मटेरियल. अगर आप इतना सब दिसंबर के एंड तक खत्म कर लो, ये ज्यादा अच्छा है. देन यू ऐड essay एंड देन यू ऐड GS1 ऑल्सो, यू ऐड सोसाइटी ऑल्सो. ये चीज करने से बेटर है कि इसको कंसोलिडेट कर लिया जाए. अगर एक आधी चीज अगर छूट गई तो वो प्री के बाद कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स दोज ऑफ यू हु हैव बीन वेरी रेगुलर, जिन्होंने ये 5 चीजें करी हैं, उनको मैं रेकमेंड करूंगा, हाँ यार आओ लाइव क्लास देखो, एटलीस्ट essay और GS1 का सोसाइटी पढ़ के जाओ. बट अगर आपने नहीं किया है, प्लीज एंश्योर दैट यू कंसोलिडेट दिस. यू विल थैंक मी विद योर लाइफ वंस यू क्लियर प्रीलिम्स कि आपने ये 5 चीजें अच्छे से कर ली, राइट? तो एक रूल बना लेते हैं, वी विल नॉट ऐड न्यू मटेरियल इफ वी हैव नॉट कंसोलिडेटेड दिस येट. दिसंबर में जो मैं आपको 40% टाइम 2 से 3 घंटे मेंस को देने को कह रहा हूं रोज, assuming that you study 8 hours a day, I am saying give 2 hours approximately, that's 33%, 2 hours approximately, or rather 25%, 2 hours you give to
2 to 3 hours you give to mains and 5 to 6 hours you give to prelims, and this all of this should be your first priority. अगर ये हो गया है तभी कुछ नया ऐड करना, नहीं तो वो प्री के बाद कर लेना, कोई बात नहीं. योर पोर्टल विल स्टे एज इट इज, योर एक्सेस विल स्टे एज इट इज. जो नेक्स्ट ईयर के करंट अफेयर्स हैं दे विल ऑल बी अपडेटेड इन योर पोर्टल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लाइक वी हैव कमिटेड. जो राइट स्मार्ट की क्लासेस हैं वो भी आपके पोर्टल पे रहेंगी, जो लॉज है वो भी आपके पोर्टल पे रहेगा. नथिंग इज गोइंग टू गो अवे. करंट अफेयर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड. आपको कहीं और, एटलीस्ट फॉर मेन्स, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. फॉर मेन्स MMP प्लस इज अ वन स्टॉप कंप्लीट सोल्यूशन, सो प्लीज डोंट वरी. ठीक है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस. तो पहला मैसेज क्या है कि यार दिसंबर में 40% टाइम देना है, 2 से 3 घंटे देने हैं आफ्टर दिस वीक एंड्स, 2 से 3 घंटे देने हैं और इसको कंसोलिडेट कर लेना है. इज दैट क्लियर? अगर कर लिया है ऑफ कोर्स यू कैन ऐड न्यू थिंग्स, राइट, बट मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे ज्यादा नई चीजें ऐड करो. इज दैट क्लियर? कोई पूछ रहा है हाउ टू कंसोलिडेट. गुड क्वेश्चन. कंसोलिडेट का मतलब है कि मेरे पास अपने सारे नोट्स एक जगह पे हों. जैसे यार GS3 में मैंने आपको पढ़ाया, उसकी बात करते हैं. GS3 में आपने नोट्स 2 से 3 बार पढ़ लिए हों, सारे लॉज अटेंड कर लिए हों, सारे राइट स्मार्ट अटेंड कर लिए हों, ब्रॉड आपको PYQs का आइडिया हो, नए क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लिख चुके हो. एंड यू नो दैट इफ आई टेल यू दैट एक सिंपल क्राइटेरिया बोर्ड पे लिखता हूं. इफ आई गिव यू दिस इंस्ट्रक्शन, प्लीज रिवाइज GS3 with all its syllabus, content या material and PYQs in 1 week. अगर आप ये एग्जीक्यूट कर लोगे, इफ यू कैन एग्जीक्यूट दिस, मैं आपको कहूं यार GS3 प्लीज रिवाइज कर लीजिए 1 वीक में पूरा. 1 हफ्ता है, 24 आवर्स हैं आपके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ GS3 पढ़ना है. 1 हफ्ते में पूरा GS3 कर लोगे. अगर इस स्टेट पे आ गए हो आप, इफ यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर लिसनिंग टू दिस, दैट मीन्स यू हैव कंसोलिडेटेड. सिंपल क्राइटेरिया है. क्यों मैं कह रहा हूं ये? जब आप नेक्स्ट ईयर मेन में प्रीलिम्स दे दोगे, उसके बाद आपके पास जून का पूरा महीना होगा, जुलाई का पूरा महीना होगा और अगस्त के कुछ महीने होंगे. सो अगस्त में तो हम नई पढ़ाई करेंगे नहीं. सो ब्रॉडली वी विल हैव 9 वीक्स ऑफ जून एंड जुलाई टू प्रिपेयर आवर कंटेंट फॉर मेंस नेक्स्ट ईयर. मैं क्या बात कर रहा हूं कि आपने 2026 में मई में आप प्रीलिम्स दे चुके हैं एंड अब आपको 2026 में अगस्त में मेंस देना है. बीच में जून और जुलाई के मंथ में ही आप पढ़ाई करोगे, अगस्त में तो रिवीजन एंड टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट में चला जाता है. 9 वीक्स हमारे पास बचे जून एंड जुलाई के मिला के. 7 पेपर हैं जो हमें पढ़ने हैं इन 9 वीक्स में. अगर आप GS के 5 पेपर 5 वीक्स में कर लोगे तो ऑप्शनल पढ़ने के लिए 1 महीना बचता है, which is more than enough. तो अब थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. जब इस गैप के बीच में हम होंगे, वी विल हैव इन जून एंड जुलाई वी विल हैव 9 वीक्स टू स्टडी कंटेंट. इन दीज 9 वीक्स आई विल टेल यू दैट ये जो 3 वीक्स हैं, इसमें आप GS2, GS3 और GS4 खत्म कर लो. 1 वीक ईच. 3 वीक्स हैं, इसमें अपना ऑप्शनल खत्म कर लो. एंड जो 3 वीक्स हैं इसमें एस्से एंड GS1 कर लो. इस टाइम पे आपके लिए GS1 करना बहुत आसान होगा क्योंकि GS1 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप ऑलरेडी मई में पढ़ के आए होंगे. एंड दिस 9 वीक्स विल इंश्योर कि हम पूरा मेंस का कंटेंट अगस्त 1 तक खत्म कर लें और लास्ट मंथ फिर सिर्फ रिवीजन के लिए रखें. राइट. तो अब ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि आप इस स्टेट में हो कि आप GS का कोई भी एक सब्जेक्ट, मैं आपको बोलूं GS2 टू बी रिवाइज्ड इन 1 वीक, अगर कर लोगे तो यू आर इन अ गुड स्टेट. अगर नहीं करोगे दैट मीन्स कंसोलिडेशन नहीं हो पाई है. देखो इस बार मैंने बहुत लोगों के 1-on-1 डैफ सेशंस लिए, अभी इंटरव्यूज भी स्टार्ट होने वाले हैं. एज पर द डेटा वी हैव नाउ, जो डेटा अब हमारे पास है, there are more than 700 students of Saarthi IAS who have cleared mains. Total 2700 लोगों का मेंस क्लियर हुआ है. 700 से ज्यादा सारथी IAS के स्टूडेंट्स हैं एंड मोस्ट लोग पता है कौन से हैं? जो आपके ग्रुप में थे, जिन्होंने 2025 की मेंस की बात हो रही है, उन्होंने 2025 में MMP प्लस नहीं लिया था, उन्होंने 2024 में MMP प्लस लिया था. वो 1 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं.
there are at least 70 people who were not in any course but part of means ready by December who have cleared means. तो आइडिया तो देखो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एग्जीक्यूशन भी अप्रोप्रिएट है, कंटेंट भी बढ़िया है. यू विल सी दिस रिजल्ट दिस ईयर, जो हम इस साल रिजल्ट देंगे. आई एम टच वुड, आई एम होपिंग इट विल बी बेटर देन यू नो व्हाट हैज बीन लास्ट ईयर. बट अगेन मैं आपको बोलूंगा, ये एग्जीक्यूट करने के लिए अब आपकी साइड से एफर्ट जो है, दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. अगर आप एफर्ट अच्छा करोगे तो नथिंग कैन स्टॉप यू, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ईयर. यही आगे की प्लानिंग थी. तभी मैं आपको बार बार कह रहा था यार ये GS 234 और ऑप्शनल कर लो, कि अगले साल 6 हफ्ते में ये 5 पेपर हम कर लें और 3 हफ्ते हम इनके लिए छोड़ दें, कुछ बैकलॉग होगा वो कवर कर लें. राइट, कुछ नई चीजें भी आएंगी, कुछ नए करंट अफेयर्स आएंगे, वो भी यहाँ पर हो जाएगा. राइट, अगस्त में रिवीजन करेंगे, जून जुलाई कंटेंट पढ़ने के लिए होगा. तो अगेन, नो न्यू कंटेंट टू ऐड. द ओनली थिंग आई वांट यू टू डू इज टू एंश्योर कि GS 234 ऑप्शनल 1 और 2 ये आप कंसोलिडेट कर लो. और कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि इन पेपर्स को आप 1 वीक में रिवाइज कर पाओ, इसको आप 3 वीक में रिवाइज कर पाओ. अगर ऑप्शनल पूरा नहीं भी हुआ है, क्लासेस हो गई हैं, तो ऑप्शनल मैनेज हो जाता है. ऑप्शनल में अच्छी बात क्या होती है कि अब थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग है ये, बट अ वेरी गुड थिंग अबाउट ऑप्शनल इज कि GS के पेपरों के बाद भी यू विल गिव GS 1 2 3 4, फिर दोबारा 5 दिन की छुट्टी मिलती है सिर्फ ऑप्शनल पढ़ने के लिए. और उस 5 दिन में आपकी इतनी एफिशिएंसी होती है कि अगर आपने कुछ भी रिवाइज नहीं किया होता तो भी आप ऑप्शनल 2 से 3 बार उन 5 दिन में रिवाइज कर पाते हो. राइट, and since I have been through this experience, our team, you know, our experience, combined experience of 4 selections and 18 interviews, you understand that we understand these things very well, and that is why this target was devised. तो पहली बात तो ये टारगेट सबको क्लियर है, और क्यों मैं ये कह रहा हूं ये भी क्लियर है. इज दिस क्लियर कि टारगेट क्यों है, कैसे डिजाइन किया है, और क्या क्या चीजें हैं इसमें. नाउ कम्स आर डिस्कशन ऑन प्रीलिम्स. हमने मेंस का एक टारगेट सेट कर लिया, आपको दिसंबर की बात कर ली. दिसंबर में 40% टाइम, 2 से 3 घंटे पर डे. दिसंबर में 2 to 3 आवर्स पर डे. इससे ज्यादा टाइम अब मेंस को हम नहीं देंगे. अब हम फिल्म्स की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो हमें बहुत बुरा लगेगा इतनी सारी मेहनत करने के लिए. सो लेट्स इंश्योर, देखो ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता कि आपका प्री क्लियर हो जाए, बट वी कैन डेफिनेटली इंश्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड. So we will ensure that we put our best foot forward, and उसका तरीका यही है that in December and Jan we don't waste our time. देखो there are many factors that will ensure कि आप दिसंबर जनवरी में पढ़ाई ना कर पाओ. One of them is winter. उठने का मन नहीं करेगा, जल्दी सोने का मन करेगा, रजाई में बैठने का मन करेगा. All of these things are natural, and even a 10-20% drop in performance translates to a huge impact in the future. Right? तो एक ये इशू डेफिनेटली हम फेस करने वाले हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन एडवांस. एक ट्रांजिशन का अपना इशू है. ट्रांजिशन इज नॉट एन इजी थिंग टू डू. राइट, इट्स नॉट समथिंग विच इज इजी टू मैनेज. आसान नहीं होता. क्यों नहीं होता आसान? इसलिए आसान नहीं होता यार कि आप, देयर इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग थिंग्स. आप मीन्स के लिए पढ़ते हो तो आप एनालिटिकल माइंड से पढ़ते हो. आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो यू हैव टू डू माइन्यूट रीडिंग and focus on all the facts and everything, and it's a difficult task. I'm not saying it's going to be easy, but firstly, now before I start talking of prelims, I am going to just say one thing, that you are already ahead in the race, and I want to congratulate all of you. एक बात सोचना है, prelims की हम बात करें उससे पहले, think about this one thing. अगर हमने ये पाथ फॉलो नहीं किया होता MMP प्लस का या मींस रेडी बाय दिसंबर का, और मान लो आप मुझे नहीं जानते, तो क्या होता इन 6 महीनों में? इन 6 महीनों में सिर्फ टाइम वेस्ट होता. और जैसे आपने पिछला अटेम्प्ट दिया था विदाउट बीइंग मींस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, सेम कंडीशन में आप ये वाला अटेम्प्ट देते हैं. राइट, एंड ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा कोई रोल है. मैंने तो बस आपको बताया है कि ये कर लो. करा तो आपने है. सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू यू. ग्रेट जॉब. And whatever effort you have put in, these were the most difficult months to put in effort. These were the most difficult months to study because the exam was far away. It was not in front of you. It was not putting any pressure on you. There was hardly any external motivation
other than the fact कि मैं बीच बीच में आके आपको कुछ कुछ बोल देता था. Most of it has been because of your internal motivation and discipline, and for that, not only am I proud of you, I would like to congratulate all of you, right? And please congratulate yourself also. I want you to think about this fact and realize this fact कि यार it was very easy for us to waste these months. इन months को waste करना बहुत आसान था, but the fact of the matter is we put in the hard work and we got to a good place. We got to a good place, right? And that matters, right? That matters, right? We could have, spent this time period of 6 months maybe finding a backup plan, maybe doing something else, but we actually did our work. Now is the time to ensure that whatever work we have put in, जो भी effort हमने किया है, उस effort का अब result आना चाहिए, right? So you are already ahead of most of the competition because you have read the content. And not only have you read the content, you have also done a decent amount of answer writing. At least if you guys have attended Write Smart, I'm sure that you are not scared of answer writing anymore. है ना? And you are way ahead of the average aspirant. Right? इनसे आप बहुत आगे हो. अब जो ये advantage है, we have to protect this advantage. If I, quote football terms, you are 1-0 ahead, right? Now you can't lose the lead, right? We can't lose the lead now. We are already ahead in the game. At halftime, we are ahead, right? And this is the halftime manager talk happening. Okay. Now in the next, 5 months, the second half of this game, we cannot lose our advantage. And the best part is that our competitors are sleeping. In December, January, they are sleeping. ठंड है, दिक्कत है, बीमारी है, शादियां हैं, बहुत बहाने मिल जाएंगे लोगों को पढ़ाई ना करने के. My students, I am sure, will put in their best in these months and then be very well prepared for prelims too. And that is what we are going to do. Ab. Going forward, what is going to be our plan for prelims? क्या प्लान है? जब भी कोई प्लान बनाया जाता है, the ideal way to do it is plan in reverse, right? आगे प्लान नहीं करते कि अच्छा मुझे प्रीलिम स्टार्ट करना है तो मुझे दिसंबर से क्या करना है, नहीं. Let's plan in reverse. Let's ensure, and since I have done this exercise and it's also available on my YouTube, अगर मई में प्रीलिम्स है तो we will ensure that May and April, where most people are, searching YouTube, Telegram, I don't know, whichever social media possible to find short notes, quick revision videos, quick fix solutions, etc. We are only going to revise. April and May में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे. This is our time of revision. These are the 2 months when we are just going to revise. We are going to give tests. We are going to have active recall sessions. 3 days revision, then 2 days revision, then 1 day revision. Our target is that in April and May, we will revise the entire syllabus 3 times. Right? Now to achieve this, अब ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में. अब इसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए? इसको अचीव करने के लिए चाहिए that on 31st March, we need to be completely done with our syllabus at least once, right? So prelim syllabus to be complete on 31st March. अब मैं आपको बार बार कहूंगा, don't look at the date of prelims as 24th May. You don't think of 24th May as the date. ये डेट है ही नहीं, ये इल्यूजन है. डेट ये है. अगर फर्स्ट टारगेट हमने अचीव किया कि 31st मार्च तक हमारा प्रीलिम सिलेबस कंप्लीट है, तो फिर अप्रैल और मई में दिक्कत आएगी नहीं, राइट? रिवीजन क्लोज टू द एग्जाम व्हेन योर कॉन्फिडेंस इज हाई इज एन इजी टास्क टू एग्जीक्यूट. अगर यहां पर प्रेशर हुआ, दिक्कत हुई, अप्रैल मई में कुछ नया पढ़ना हुआ, कुछ कंटेंट रह गया, देन इट्स गोइंग टू बी एन इशू. सो डोंट लुक एट दिस डेट. दिस डेट will give your mind a sense of complacency.
Let's look at this date and say that 31st March is our date. And on this day, I will complete the entire prelim syllabus. This is going to be my entire, journey ahead. Okay. Now for this, what do I have to do? Dekho. When I go for prelims, I have to understand, right, that it's a unfortunate reality कि एक दिन में पेपर होता है, right? And this bad 2 hours paper, complete year's hard work can be buried under one bad performance, right? So it is a graveyard. It is an unfortunate graveyard. I don't think the format should be like this, but that is what we're dealing with, right? तो अब what to do next? हमने टारगेट तो सेट कर लिया कि यार 31st को we are going to complete all our things that we have to read. Now, first thing, whenever we have to prepare for prelims, we have to prepare as per our personalized strategy. I cannot tell you that these are the areas you need to focus on more, because you will be weak in certain areas and I might be strong in those areas. तो मैं हो सकता है आपको बोलूं यार साइंस एंड टेक तो एक हफ्ते का काम है, और आपको नहीं सर मुझे तो बायोटेक कभी भी नहीं आता. So we need to understand that there are some areas for us that are not that good and some where we are strong. अब इसको एनालाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? ये नहीं कि आप अभी जाके टेस्ट दे दो. I would ask all of you to use this tool. Now, what is this? This is the ultimate prelims analyzer that I have created. इसमें क्या होता है, इसकी वीडियो भी है YouTube पे. If you go to my YouTube and I can show you. मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आज आप सब लोग इस वीडियो को देखें. I would very strongly recommend that you go and watch this video today. It is this video. ये जो one tool revolutionize your prelims prep है, that video talks about this particular tool where I have told you how to analyze your weaknesses and your strengths in prelims. And not only does it help you analyze, it generates a personalized report for you कि आपको आगे क्या इंटरवेंशंस यूज करनी है. एक ऐसी रिपोर्ट आपके हर सब्जेक्ट की बन के डाउनलोडेबल आपको अवेलेबल है. So would strongly recommend that today you use this tool for at least the subject you are going to study next. अगर आप नेक्स्ट पॉलिटी करने वाले हैं पहले प्रीलिम्स में, तो एटलीस्ट हम पॉलिटी के लिए ये टूल यूज करके एक अपनी रिपोर्ट जनरेट कर ले. हमें पता हो कि पॉलिटी में भी हमारा वीक एरिया क्या है. Is content our problem in polity, or our MCQs our problem? Is a silly mistake problem that we are facing, or a time problem that we are facing? हर चीज के हिसाब से बहुत अलग इंटरवेंशंस हैं जो हमें करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एमसीक्यूज में ज्यादा दिक्कत होती है बट मेरा कंटेंट ठीक है, आई वुड से गिव मोर टेस्ट. बट अगर मुझे कंटेंट में ही प्रॉब्लम है, आई वुड से रीड मोर एंड रीड बेटर, राइट? एंड दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू डू टुगेदर. यू कांट डू बोथ एट द सेम टाइम. आपको पता होना चाहिए कि मेरा यार ये इशू है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा. एंड फॉर दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू यूज दिस टूल, राइट? इसकी वीडियो देख के 20-25 मिनट की वीडियो है जिसमें समझाया इसको यूज कैसे करना है. वेरी इंटुइटिवली इजी टू अंडरस्टैंड. एंड कुछ नहीं करना, आपको बस अपना प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस याद करना है और ऐसी एक रिपोर्ट बन के आपके पास आ जाएगी. तो फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल यूज दिस एनालाइजर एंड एंश्योर दैट वी हैव अ पर्सनलाइज्ड सेट ऑफ इंटरवेंशंस फॉर अस फॉर प्रीलिम्स गोइंग फॉरवर्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट का टूल अलग से यहाँ पर अवेलेबल है. प्लीज यूज दिस. इट्स ऑन माई वेबसाइट. वेयर विल यू फाइंड दिस? If you go to my website, I'll just open it in front of you here. Go to drshivan.com. आप यहाँ पर जाएंगे तो sorry about this. आप यहाँ पर जाएंगे तो you will see this prelims analyzer written here. आप इस पे क्लिक करेंगे and you will reach here. Right? तो economy, current affairs, modern history, ancient medieval art and culture, IR, geography, environment, science and tech, polity, सबके लिए एक effective टूल है जिससे आपको एक पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन शीट मिल जाएगी. फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. देन व्हाट नेक्स्ट? देखो यार,
ये कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा आप प्रीलिम्स के लिए याद रखो। आई हैव सेड देम बिफोर एंड आई विल से देम अगेन। प्लीज रिमेंबर दीज 5 थिंग्स फॉर प्रीलिम्स। चाहे कुछ भी हो जाए, इन 5 चीजों को हमें अबैंडन नहीं करना है। सबसे पहले, डोंट गैम्बल ऑन एलिमिनेशन। देखो, बहुत लोग आएंगे और बहुत बातें करेंगे कि एलिमिनेशन सीख लो, टेक्निक सीख लो। ऐसा नहीं है इन टेक्निक से फायदा नहीं होता, होता है। आई वुड एडमिट इन टेक्निक से फायदा होता है। मे बी दे कैन गेन यू 20 मार्क्स, बट विदाउट अ नॉलेज बेस यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। हमें ये रिस्क क्यों लेना है कि हम तुक्केबाजी, तिगड़म वगैरह कर रहे हैं? अगर आपको देखना है यूपीएससी अब किस टाइप के पेपर बना रहा है, तो आप ईपीएफओ का पेपर देख लो एंड यू लुक एट द टफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग नाउ। हमने अभी तक अपने नॉलेज बेस को स्ट्रांग रखा है। जो ये एलिमिनेशन टिक्स वाले एस्पिरेंट्स हैं, ये वो हैं जो फरवरी में जागते हैं, बट हम तो दिसंबर में पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्सीडेंटल पार्ट टाइम एस्पिरेंट्स, वी आर हार्ड वर्कर्स, सो वी विल वर्क हार्ड। राइट, मैं ये नहीं कह रहा एलिमिनेशन मत सीखो, बट दिस शुड नॉट बी योर ओनली रिजॉर्ट, इट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। यार मेरे पास अब बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, तो मैं यूज करके देख लेता हूं। At best, this will give you 10 to 20 marks. If you want 100 marks in prelims, this is going to give you 20. तो इस पे 20% की ही थिंकिंग और 20% का ही एफर्ट जाना चाहिए। 80 marks are going to come from knowledge and concepts first. Where will that knowledge and concepts come from? देखो, ये पॉसिबल है कि आप कोई भी करंट अफेयर्स ना पढ़ो और कोई भी पीवाईक्यूज ना करो और शायद आपका फिर भी प्रीलिम्स हो जाए, पॉसिबल है, सिर्फ स्टैटिक पढ़ के। बट अगर आपने स्टैटिक अच्छे से नहीं किया, उसके बाद अब कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी ताकत आपका प्री क्लियर नहीं करा सकती। राइट, स्टैटिक कम्स फर्स्ट। सो इफ स्टैटिक कम्स फर्स्ट, इसको इग्नोर नहीं करना है। पीवाईक्यूज के पीछे तो हम भागेंगे ही, बट करंट अफेयर्स के पीछे स्पेशली ज्यादा नहीं भागना है। राइट, करंट अफेयर्स में क्या होता है, ये मंथली मैगजीन भी, पीटीसी 65 भी, कोई रैंडम यूट्यूब की वीडियोस भी, भाई मत करो। 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं एंड उसके लिए भी जो मुदस्सर कंपाइलेशन बनाते हैं, आई डोंट थिंक दिस एनीथिंग बेटर देन दैट। बट उसको छोड़ के, वो नहीं भी पढ़ोगे, पहले स्टैटिक कर लो यार। ऑनेस्टली 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, 7 से 8 उनकी किताबें हैं। अगर आप कह सकते हो दैट इन 7-8 चीजों में मुझे सब कुछ आता है, राइट, यू विल मेक इट। ठीक है, एवरी सब्जेक्ट मैटर्स। ये मत करना कि अब फिर से वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी पे फोकस करा, नहीं। फोकस ऑन द मेज सब्जेक्ट्स, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, बिल्कुल हैं, बट इनसे भी स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं। 2023 में मैंने सबसे पहले साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट पढ़ाया था, तब भी मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ाया था। I taught monoclonal antibodies in 2023. I taught Gagan in 2023 and it has come now. It is a static oriented paper. At least 50 to 60% questions are static, which can be handled even if you have not read current affairs in that much depth. इसलिए प्लीज इसको इग्नोर ना करें। किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट ना लें। अभी तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, बट मार्च अप्रैल में क्या होगा? कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, कोशिश करके भी नहीं होगी। चाहे उपेंद्र सिंह मैम खुद आपको पढ़ाने आ जाए, वो 2 घंटे में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा सकती, अनलेस उनको पेपर पता हो। ठीक है, डोंट ट्रस्ट दीज थिंग्स। इफ इट इज हार्ड, एक्सेप्ट दैट इट इज हार्ड। अगर नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट लेके उसको सॉल्व करने का तरीका सही नहीं है। टफ है तो है। The first step to solving any problem is to accept that there is a problem. तो शॉर्टकट नहीं लेना है और एक प्लान्ड प्रिपरेशन करेंगे, रैंडमली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज बार बार नहीं करेंगे। Are these 5 points well understood? And I'm sure you can relate back to your experience of prelims last year and understand मैं ये क्यों कह रहा हूं। Navigating these problems. Let's talk of what I would recommend you should do टू एंश्योर के प्रॉब्लम्स ना आए। देखो, आपने जहां से भी wherever you have taken your फाउंडेशन फ्रॉम, आपने वहां पर कुछ सब्जेक्ट्स तो पहले से पढ़े होंगे, राइट? हमें ये लगा था कि मोस्टली लोगों ने पढ़ रखे होंगे। नाउ
प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू सोर्सेस। मैं कुछ एक दो चीजें यहां लिख देता हूं। डोंट ऐड न्यू सोर्सेस अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर कहीं से आपने फाउंडेशन पहले पढ़ रखा है, लेट्स से यू हैव read polity before from Lakshmikant or from wherever you have taken your foundation coaching, study that only. Don't add new sources unless absolutely necessary. We have to complete the prelim syllabus. हमें prelim syllabus को complete करना है by 31st March. ठीक है, हमें रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है. नो रैंडम प्रिपरेशन टू बी डन. And we have to ensure that tests and MCQs become an everyday thing for us. देखो, आपने देखा होगा जब आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी तब आपको आंसर राइटिंग से बहुत डर लगता होगा, राइट? अब इतने क्वेश्चन हमने राइट स्मार्ट और लॉज में कर लिए दैट नाउ इफ यू लुक एट अ क्वेश्चन, अ मेंस क्वेश्चन टू बी प्रिसाइज, आई एम श्योर इट डज नॉट स्केयर यू, रादर इट बिकम्स अ फन एक्टिविटी. इज दैट ट्रू? दैट अब अगर आप एक मेंस का क्वेश्चन देखते हो आपको लगता है यार कि ये तो बढ़िया चीज है, राइट? दीज आर गुड थिंग्स एंड यू फील लाइक यार ये तो मजा आएगा, यू नो, let me try and break this down, let me see what approach you can use. You start enjoying the process basically, right? It is no longer something that scares you, correct? This same this same gusto, this same advantage that you feel in means, I want you to feel in prelims also. And that is why, how can that come? That can only come through everyday practice. हम इतने MCQs कर लें, हम इतने MCQs कर लें कि हमें MCQ से डर लगना बंद हो जाए. Rather, when we look at an MCQ, we feel a certain sense of excitement कि मजा आएगा क्वेश्चन करके. The way you are now feeling with meals. तो ये चीज हमें याद रखनी है. PYQs हमें इग्नोर नहीं करने. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहता कि 10,000 कोचिंग के टेस्ट दे दो, 10,000 टेस्ट, या सारे PYQs 2 बार कर लो, किससे ज्यादा फायदा होगा? तो मैं कहूंगा सारे PYQs दो बार कर लो, इससे फायदा हो जाएगा. ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी हालत में इसको इग्नोर नहीं करना है. आप लोगों ने GS3 में मेरे साथ एक्टिव रिकॉल किया होगा, लास्ट के 2 सेशन हमने रखे थे, राइट? डिड यू रिमेंबर और डू यू रिमेंबर हाउ वेल दैट वेंट एंड हाउ इट वाज experience for that you would probably take forward also and remember कि यार उससे बहुत बढ़िया से चीजें कंसोलिडेट होती हैं. Probably the best way to consolidate a lot of memory, a lot of things that are scattered in your mind in a proper way is to go for active recall, right? You did that session with me, right? Did you benefit from that session? आप लोगों ने मेरे साथ एक्टिव रिकॉल का वो सेशन किया था. Did you benefit from it? तो वो जो टेक्निक है, वो एक्टिव रिकॉल की जो टेक्निक है, वो यहां पर भी अप्लाई करेंगे, राइट? वी विल अप्लाई दैट टेक्निक हियर एंड द वे वी हैव बीन structuring our preparation through daily targets, that we will do here as well. Now, 2 very important things about prelims are left, which are 1, current affairs, and 2, please don't ignore this, CSAT. करंट अफेयर्स और CSAT को कृपया करके इग्नोर ना करें, ठीक है? ये सारी चीजें हमें हैंडल करनी है. नाउ फॉर एनीबडी हु स्टार्ट्स ट्रांजिशनिंग, आप सारथी के साथ करो, आप खुद से करो, द प्रिंसिपल्स विल नॉट चेंज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ दीज ब्रॉड प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, राइट? एंड व्हाट डज स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मीन? To stay structured during our preparation, we must have a plan ahead. Now, next week or probably on Sunday, this Sunday, I will give you a 5-month planner on YouTube. A 5-month planner. Right?
where I'm going to talk about how we are going to handle the next 5 months for UPSC prelims 2026, right? So 5-month planner for prelims. We will follow this planner to the T, and this will work in this manner that 31st March तक हम syllabus complete करेंगे, ठीक है? Structured preparation ऐसे है. Second thing, now once I have this plan, let's say my planner says that December 9th I am starting, that is a Monday, and for 3 weeks I have to do polity. Planner में तो इतनी ही बात लिखी हो सकती है, right? इसके बाद what do we say after this? इसके बाद we say that okay, what do we do for our daily targets? Now for my daily targets, I will plan my daily targets in such a way that in 3 weeks I am able to finish polity. So it needs to be this structured, this relevant, this comprehensive, and this organized, that I am already aware what I am going to study for the next 3 weeks. ये first principle है, structured preparation होनी चाहिए, ठीक है? Now, if you are here, I'll tell you that this is what I basically do in my mentorship sessions. जो प्रीलिम्स नेविगेटर हम कर रहे हैं उसके मेंटरशिप सेशंस में मैं यही करता हूं. अगर आप खुद से करना चाहें खुद से करें, बट डोंट मिस आउट ऑन दिस. ये हमें करना है 100%. वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन. देयर इज नो वे वी कैन मिस आउट ऑन दैट, ठीक है? सेकंड थिंग, नाउ वंस एवरी वीक कंप्लीट्स, यू कंप्लीट 1 वीक. जैसे आपने कहा मैं मंडे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पॉलिटी पढ़ा मैंने सैटरडे तक. नाउ फर्स्ट वीक था, मंडे टू सैटरडे मैंने पॉलिटी पढ़ा. नाउ you need to revise what you have read in this week. Best way to do that is active recall. So you have to go in for active recall this way. आप खुद से करना चाहो तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि इंडेक्स खोल के याद कर लो. आप यहां होगे तो मैं आपको करा दूंगा, बट दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव टू अचीव. आप ये प्रिंसिपल समझो. आप अगर ये फॉलो कर लोगे, आई एम प्रिटी श्योर that prelims will no longer be a problem. मेंस से ज्यादा आसान है. आपने अगर मेंस में मेहनत कर ली है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी. So we will do active recall after every week. Now मैं आपको कह रहा था कि हमें एक आइडिया लेना है कि यार MCQs और टेस्ट हम इस लेवल पे कर लें कि हमें उनसे डर लगना बंद हो. So for that what we'll do is that we'll do daily tests. We'll do daily tests and we'll do a weekly test on every Sunday. संडे को हम करेंगे 100 क्वेश्चन टेस्ट और डेली हम करेंगे 25 क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है? एंड दिस इज आवर प्लान अहेड, राइट? अब अगर आप डेली टेस्ट करना चाहते हो, दीज डोंट रियली हैव टू बी क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. जैसे लक्ष्मीकांत की खुद की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसके 25 क्वेश्चन रोज कर लीजिए. बट आई वांट दैट व्हेनेवर यू वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू डू एवरी डे इज डू दीज 25 क्वेश्चंस. इट्स बेटर इफ यू डू इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, जहां पर आपको आपकी रैंकिंग भी दिख रही हो, आपको आपकी मिस्टेक्स भी दिख रही हो, जहां पर रीअटेम्प्ट करके उन मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइज्ड हो. दैट वुड बी बेटर. बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ताकि एमसीक्यू से डर लगना बंद हो जाए. नाउ इफ यू लुक एट दिस, these are what 25 into 6 Monday to Saturday, 25 into 6 150 questions, 100 questions on Sunday. And prelims navigator mein we also have every week one PYQ session where we do 50 PYQs with Sajal sir, and one live MCQ session where we do 50 new questions where we learn these elimination tactics and skills with Varun sir. तो एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन हो गए? 25 into 6 जो हम डेली कर रहे हैं, दिस इज 150. 100 क्वेश्चंस ऑन संडे, सो प्लस 100, 50 PYQs, 50 LMS क्वेश्चंस, तो 100 और. दिस इज 350 क्वेश्चंस प्लस 50 क्वेश्चंस मैं आपको एक्टिव रिकॉल में याद कराता हूं, वेयर आई मेक यू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव डन थ्रू दिस वीक. So we are doing approximately 400 questions per week.
This is 4 times more than what we have to do on the prelims day. तो अगर हम इतनी रिवीजन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक एमसीक्यू से वो जो डर होता है वो हमें लगेगा। हफ्ते के 400 क्वेश्चन है यार। एक दो चीजें मैंने और बोली। करंट अफेयर्स में आप चाहे तो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस। करंट अफेयर्स में मुदत सर ने जो कंपाइलेशन बनाई है, आई डोंट थिंक उससे बेटर अभी मार्केट में कुछ है। एंड दिस ईयर इन करंट अफेयर्स आई एम गोइंग टू बी टीचिंग इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट. Varun sir is going to be teaching IR and he is going to teach all of these subjects. And even if you don't follow the classes, at least follow that compilation, because I personally know that every day, आप उनके YouTube पे भी देख सकते हो, he puts the videos on YouTube also. Every day he reads the Hindu, Indian Express and PIB and doesn't miss a single fact. तो current affairs के लिए just follow that. If you want to follow the classes, you follow the classes or you follow the compilation. And I am confident कि इससे better material market में नहीं है. Now, there will be a few doubts here. कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि यार I have not read my foundation subjects properly. मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी भी ढंग से नहीं पढ़ा, मेज तो बात की बात है. So पहले हमने ये नहीं किया था, but now after understanding this problem of the students, in Prelims Navigator we have included all the lectures of polity, of geography, of modern history, my lectures of economy, polity by M. Puri sir, geography by Pallavi ma'am, modern history by Jasleen ma'am, economy by me, and mapping and art and culture and IR and science and tech and current affairs and environment. So everything that is asked we have included and we have put in one place, ताकि ये प्रॉब्लम कभी आए ही ना. Now, एक चीज रह गई CSAT, that is also something that we have included. तो हमने सारी चीजें जो हम अपने साइड से सोच सकते थे कि प्रीलिम्स के लिए चाहिए, we have put in one place and created the best program possible. But what if somebody is not following this? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं that on Saturday, जैसे मैंने मेंस रेडी बाय दिसंबर लॉन्च किया था, सिमिलरली मैं एक स्टेप प्रोग्राम भी करूंगा लॉन्च, राइट? एंड although it will not have the lectures and the questions, but if you want the targets and broad schedule to follow, वो आप step में follow कर सकते हैं. Now, since all of you are our internal students and you are all people who are, part of the Sarthi family, we are, like I've said before, I am absolutely invested in your success. देखो, अगर आप succeed करते हो तो मुझे सब कुछ मिलता है. अगर आप नहीं करते हो तो मुझे कुछ नहीं मिलता है. All the respect, adulation, whatever I have earned from this industry, it has come from the fact that you, who is my student, should succeed. And therefore I am telling you कि please keep these principles in mind and please don't waste the next few months. अगर अगले few months आपने waste कर दिए, दिसंबर जनवरी वेस्ट हो गया, तो ये सारी एडवांटेज जो है ना, ये सारी एडवांटेज कहीं ना कहीं चली जाएगी. वन मोर थिंग, आपको प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत लोग आके मिसगाइड करेंगे, राइट? देखो, मेंस के टाइम पे जब मेंस चल रहा था, जून जुलाई में बात हो रही थी मेंस की, अगस्त में बात हो रही थी, you would see there was not a lot of I would say rogue content on YouTube, because मेंस पढ़ाना मुश्किल है, मेंस पढ़ाने में मेहनत लगती है. प्रीलिम्स में क्या है कि कई लोगों ने एलिमिनेशन से क्लियर कर लिया है. अब 75 का कट ऑफ है, उनके 76 मार्क्स आ गए और उन्होंने फिर उसके बाद उस चीज को हर जगह गा दिया है. कोई कह रहा है 150 नंबर एलिमिनेशन से आ जाते हैं. प्लीज इग्नोर सच थिंग्स. आई हैव सीन वेरी गुड स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ देयर ओवर रिलायंस ऑन शॉर्टकट्स. आप कुछ भी कर लेना, प्लीज हार्डवर्क मत छोड़ना. चाहे आप कहीं से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, प्लीज एंश्योर यू नो योरसेल्फ. अंदर से पता होता है कि यार मैं शॉर्टकट ले रहा हूं या मैं मेहनत कर रहा हूं. प्लीज ऑलवेज err on the side of hard work, not on the side of these cheap tricks, because this is not going to work and the disappointment you will feel is going to be immeasurable. You are not somebody who has spent the last 6 months whiling away your time and getting distracted. You are somebody who has genuinely studied. So let us now make use of that.
ठीक है, let us make use of that. One last message, and this is a very positive announcement for all of you. All of you who are our students, if you wish to go into Prelims Navigator, you can use this, and I think it's going to be valid for the next week to get I think it's $1,000 off on Prelims Navigator on if you want to enroll for it. Anyway, that is what I had to talk to you about. Now I want you to ask me any questions that you have. I know I'll not be able to take all of them, but जो भी questions होंगे, you can ask me and I'll answer. I'm here for the next 30 minutes. पहले, before you ask me any questions, is the message clear? Is the message clear? Critical time है. Please don't waste this critical time. Please don't waste this critical time. I hope the message is clear. So I'll just look at the first few questions that I've gotten. The first few questions are on how to approach or start a subject. देखो, बैच 2 के लिए जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे, पॉलिटी विल स्टार्ट ऑन मंडे, तो उनकी वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस आई विल बी मेकिंग ऑन माय यूट्यूब एंड यू कैन फॉलो दैट. जब हिस्ट्री की बारी आएगी तो हिस्ट्री का सोर्स डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. आरुष कह रहा है बिना कंटेंट के हाउ कैन आई अटेम्प्ट क्वेश्चंस. पॉलिटी में कंटेंट कैसे कम है? आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं से तो पॉलिटी पढ़ा होगा. यू हैव दैट कंटेंट. वी विल हैव वन मोर बैच इन जनवरी. बैचेस की मैं कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूं. वी हैड वन बैच इन नवंबर. वी आर गोइंग टू हैव वन बैच हियर एंड वन इन जनवरी. बट ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, anybody who is part of Prelims Navigator gets access to all the batches. सारे बैचेस में एक्सेस मिलती है आपको. तीनों बैच अलग से अपने पोर्टल पे दिखते हैं. आपको जो फॉलो करना है फॉलो कर लो. So anybody who enrolled in November will also currently has access to the December batch. Anybody who enrolls in December will have access to these batches also. तो आप कब भी आए आपको सारे बैचेस की एक्सेस मिलती है. तो एक बैच की प्रॉब्लम है ही नहीं. यस दीक्षा, आप मेंस करंट अफेयर्स बिल्कुल प्रीलिम्स के बाद देख सकते हैं. फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और जो मेंस सब्जेक्ट्स हैं, वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर्स फॉर एवरीथिंग. कोर के लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, मेंस के लेक्चर्स लाइव हैं, एंड वी आर गोइंग टू हैव पीडीएफ नोट्स फॉर एवरीथिंग. एंड ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं. मेंस के अलावा जो कोर हैं उनके अपलोडेड हैं. राइट, वी आर गोइंग टू हैव पीडीएफ नोट्स फॉर एवरीथिंग. वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग लास्ट ईयर पीआरपी में थे, यू गाइस डोंट नीड न्यू कंटेंट. ठीक है. सो यू डोंट नीड टू कम टू द प्लस वर्जन. आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो. आप कंटेंट पुराना यूज कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू विल नीड न्यू करंट अफेयर्स एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू गिव द टेस्ट एंड एवरीथिंग. बट आपको ये इसकी जरूरत नहीं है. अपने पुराने कंटेंट को यूज करो. जो मैंने सबसे पहली बात लिखी है, I wrote it here and please follow this. Don't add new sources. ठीक है. अगर आप पीआरपी में थे, अगर आपको नेविगेटर में आना भी है तो बेस में आइए. तो आप करंट अफेयर्स करो. आप देखो, हमने जो 3 वर्जन बनाए, हमने बनाए ये सोच के हैं. जो बेस वर्जन है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से कंटेंट है. उसमें मेंटरशिप है, करंट अफेयर्स है, सीसैट है. कंटेंट नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से है. तो अगर आप पीआरपी में हो, डोंट ऐड न्यू सोर्सेज, डोंट रीड द नोट्स अगेन, follow whatever you have read, just update your current affairs and give the test and attend the active recall sessions. Okay. कृष्णा, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया. Yes, sharing my mentorship sessions are included in Prelims Navigator. Last year science PRP notes are valid. Of course, current affairs will need to be updated. Static तो valid है, concepts तो हमने पढ़े हैं. नई चीजें हमें डेफिनेटली जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी. मे सेपरेटली वी माइट लॉन्च इन जनवरी. हिस्ट्री पे जब आएंगे तो हिस्ट्री की बात करेंगे. ठीक है. ऑल राइट, यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस. गौरिका, डोंट कवर सोसाइटी. आप छोड़ दीजिए, ये 5 पेपर कर लीजिए.
अब देखो, आकांक्षा सिंह पूछ रही हैं, सर आई मेड अ मिस्टेक इन माय प्रीलिम्स क्वेश्चंस इन 2025, शुड आई चेंज माय सोर्स? इसी के लिए मैंने आपको पहली चीज क्या कही, प्लीज वॉच प्रीलिम्स एनालाइजर वाली वीडियो। ये जो टूल है ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आए। इस वीडियो को देखो, टाइम लगेगा यार, आई कांट गिव यू अ वन स्टॉप सोल्यूशन और वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन कि यार ये लो, ये कर लो और प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो सबका ही हो जाता। इट विल टेक टाइम फॉर द एनालिसिस। दिस टूल इज मेंट टू एग्जैक्टली फाइंड आउट योर प्रॉब्लम कि यार आपकी प्रॉब्लम सोर्स में थी, या आपके रीडिंग टेक्निक में थी, या आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग में थी, या आपकी सिली मिस्टेक्स में थी। कहां प्रॉब्लम थी उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। You might have a problem in the source of ancient medieval, the MCQ solving technique of economy, and silly mistakes in science and tech. हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम हो। So for every subject there is going to be a different idea that you have to incorporate into your prep, and for that I am recommending to you strongly that you use this tool. Is it necessary to update Lakshmikant version, Ashwini? No, it's not. Strategy for art and culture I'll talk about on my YouTube. जैसे लोकेश कह रहा है, हेल्थ इश्यूज लास्ट मंथ एंड आई एम स्टिल रिकवरिंग, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। लोकेश, द एडवाइस डज नॉट चेंज। 5 out of 7 फॉर मींस जब हो जाए दिसंबर में 2 से 3 घंटे मींस को देना और अब प्रीलिम्स में ट्रांजिशन कर लो। आकांक्षा इज आस्किंग, इन पीएमपी आर फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड और नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स? यस दे आर। पहले जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, जब एंड में टेस्ट होंगे वो फुल सिलेबस फुल लेंथ होंगे, सो दे आर इंक्लूडेड। हाउ टू मैनेज मेंस अलोंग विद प्री, सौरभ इज आस्किंग। सौरभ, यही बात तो कर रहे हैं हम तब से। 2 से 3 घंटे मेंस को दो, बाकी टाइम प्री को दो। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मेरे को तो काफी इंसोम्निया रहता है यार, मैं तो ढंग से सो नहीं पाता हूँ, बट 7 to 8 आवर्स आई थिंक यू शुड टारगेट। हो नहीं पाएगा बट 7 to 8 आवर्स यू शुड टारगेट। शुभम सिंह इज आस्किंग कि सर मैं लास्ट ईयर लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था तो मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, तो नाउ शुड आई ऐड समथिंग डिफरेंट? एक बार वो टूल यूज करो, मैं बता रहा हूं। देखो यार, देर आर 4 पॉसिबल थिंग्स। देखो ये चीज समझना है एक बार, देर आर 4 पॉसिबल थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट के लिए। पहला हो सकता है कि जो मैं सोर्स फॉलो कर रहा था वो सोर्स खराब था, तो मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत है। ये कैसे होगा कि लेट्स से मैंने प्री का पेपर दिया, उसमें पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए, मेरे सोर्स में 3 ही थे, तो मेरा सोर्स खराब है। दूसरा क्या हो सकता है, दैट सोर्स तो ठीक था, दिस वाज फाइन, बट आई डिड नॉट रीड इट प्रॉपर्ली। मतलब मेरे सोर्स में दिए हुए थे, बट जिन चैप्टर्स में दिए हुए थे वो चैप्टर्स मैंने अच्छे से पढ़े ही नहीं, सो आई हैड अ रीडिंग इशू। अब यहां पर मुझे क्या फिक्स करने की जरूरत है इस बार, आई नीड टू रीड इन अ मोर फोकस्ड एंड डेडिकेटेड मैनर, राइट। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या सोर्स में तो था, मैंने रीड भी अच्छे से किया, बट मुझे रिकॉल नहीं हुआ। वहां पर मेरे सोर्स में है, मैंने पढ़ा भी हुआ है, मेरे सोर्स में है, बट मेरे से रिकॉल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स माई प्रॉब्लम इज एक्टिव रिकॉल। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस बार एक्टिव रिकॉल करना चाहिए ताकि मैं और बेटर याद कर सकूं। मेरा सोर्स ठीक है, मेरी रीडिंग भी ठीक है, बट रिकॉलिंग में प्रॉब्लम है। एंड लास्टली क्या हो सकता है कि मेरे सोर्स में भी था, मैंने रीड भी किया था, मैंने रिकॉल भी किया, बट वहां पर एमसीक्यू देख के सामने मैंने अप्लाई नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, या मुझे एमसीक्यू इंटरप्रेट नहीं किया गया, राइट। अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे दूसरा सोर्स पढ़ना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे रीडिंग चेंज करनी चाहिए, अपना रीडिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे ज्यादा एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम है तो आई शुड गिव मोर टेस्ट। नाउ दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, और यही पता करने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस टूल को यूज करें। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप एक बार यूज करके तो देखो, एंड यू विल अंडरस्टैंड फॉर एवरी सब्जेक्ट। हो सकता है आपको लगे यार कि ज्योग्राफी में ना ये इशू था यार, तो ज्योग्राफी में इस बार मैं डिफरेंट सोर्स यूज करूंगा। ये इशू पॉलिटी में था, लक्ष्मीकांत में बेटर पढ़ूंगा। ये इशू मेरे को इकोनॉमी में हुआ तो इस बार मैं रिकॉल बेटर करूंगा। और ये इशू मुझे साइंस एंड टेक में हुआ तो इस बार यार साइंस एंड टेक के ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सिर्फ इस टूल को यूज करके ही आपकी प्रिपरेशन मच बेटर करी जा सकती है। स्वरा इज सेइंग दैट शी इज posted in
ENT एंड जनरल मेडिसिन, शी इज अ डॉक्टर एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब पोस्टिंग्स हैं उनकी अगली दो, कुछ नहीं कर सकते यार. स्टडी एज मच एज यू कैन, यू प्लान कांट चेंज, राइट. फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फेब मार्च में. 2 months बिहाइंड इन माई मेंस प्रिपरेशन. देखिए मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप और ज्यादा टाइम आप मेंस में लगे रहें, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल बी हार्मफुल. अगर आप प्री कर ही नहीं पाए तो दिक्कत होगी. दिसंबर का टाइम है, इसके बाद नहीं. 70% ऑफ 5 पेपर्स इज ब्रॉडली फाइन. ऐसे प्रैक्टिस छोड़ दो यार. 5 out of 7, जो 5 out of 7 की बात की है वो 5 out of 7 पे फोकस करते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं फोकस करते हैं. हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल ऑन योर ओन. देखो वैसे तो मैंने इस पे वीडियोस भी बना रखी हैं यूट्यूब पे. इट्स वेरी इजी. मैंने GS3 में करके भी दिखाया था प्रथम. जैसे मान लो मुझे प्रियम्बल का एक्टिव रिकॉल करना है, अभी कर लेते हैं. प्रियम्बल का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में. सबसे पहले क्या होगा, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल. तो चलो याद करो कि प्रियम्बल में इक्वालिटी कौन सी है, जस्टिस कौन कौन सी है, लिबर्टी किस टाइप की है, डेट कौन सी लिखी है, जो पहले 5 वर्ड हैं वो क्या हैं, किस ऑर्डर में है, सॉवरन के बाद सेकुलर आता है या सोशलिस्ट आता है. याद किया. अच्छा, फिर प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं. इसके 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, चारों में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन क्या है. फिर एक वर्ड है सॉवरन, तो सॉवरन वर्ड का मीनिंग क्या है. फिर वर्ड है सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है. डू वी फॉलो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और फेबियन सोशलिज्म, और इनमें फर्क क्या है. देन द वर्ड इज सेक्युलर, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है. व्हाट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म. हाउ इज आवर सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन और फ्रेंच सेक्युलरिज्म. देन द वर्ड इज डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड व्हाट आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. देन वर्ड इज रिपब्लिक, so what is the meaning of republic, what is the different points or differentiating factors between a constitutional monarchy and a republic, and think about the example of England. Then there is equality, so what does equality mean, what is substantive equality, what is difference between equality and equity. Then there is liberty, तो preamble में 5 तरह की liberty दी है, of thought, expression, belief, faith and worship, इसी ऑर्डर में. तो ऐसे ही इक्वालिटी कितने टाइप्स की हैं और जस्टिस कितने टाइप की हैं. 3 तरह की जस्टिस हैं, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, राइट. देन हैज द प्रियम्बल एवर बीन अमेंडेड, व्हाट वर द वर्ड्स एडेड इन दोस अमेंडमेंट, राइट. हु अमेंडेड इट, व्हिच अमेंडमेंट वाज इट, व्हाट इज द डेट रिटन इन द प्रियम्बल, एंड उस डेट को हम आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं. इज प्रियम्बल एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल. If it is not justiciable, what is its use in the constitution? Was preamble drafted after or before the entire constitution was drafted? हो गया active recall. If you were able to answer all of those questions, you are fairly aware of how to handle that issue, right? But the point is, you should be able to answer all of them, right? Difficult है ये काम. देखो यार, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता. अगर मैं कोई इकोनॉमी का सब्जेक्ट ऐसे टॉपिक ऐसे अभी आपको एक्सप्लेन कर देता, देन इट वुड नॉट हैव बीन अ बिग डील, बिकॉज मैं इकोनॉमी रोज पढ़ता हूं. बट ना मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और ना मैं पॉलिटी रोज पढ़ता हूं. मैंने 2022 के मेंस के बाद हार्डली कुछ पॉलिटी पढ़ी है, बिकॉज व्हाई वुड आई, राइट. मुझे तो नहीं देना पेपर दोबारा. इट हैज बीन 3 years. 2022 का मेंस तब सितंबर अक्टूबर में हुआ था, सितंबर में हुआ था एक्चुअली. It is now November of 2025. I have not read Lakshmikant for 3 years, but I remember these things. This is the power of active recall, and that is why I am telling you, come and do those active recall sessions with me. अगर खुद से करना है तो ऐसे करना है, right? But I'm sure all of you would agree कि अगर इस लेवल की नॉलेज आपको है and for a long time है, तो प्री में आपको कोई कंफ्यूज कर नहीं सकता है. In PNP, daily 25 MCQs will be provided. Yes, 25 MCQs are included in the test. जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो सब already included है. निधि is asking, sir मैं already PNP में हूँ और क्या मैं साथ में मेंस का भी इकोनॉमिक. नहीं, डोंट मिक्स, मत करो ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन झूठ होता है. डोंट डू इट.
आकांक्षा, वॉट एवर यू कैन वॉच टिल 9th December यू कैन वॉच, उसके बाद नहीं। CSAT पे आई बी मेकिंग अ वीडियो सून। शुभम कदम, आंसर इज यस इफ यू फॉलो इट। ही इज सेइंग कि मैं MMP में रेगुलर नहीं था, अब अगर मैं PNP ले लूंगा तो क्या मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा? आप अगर ऐसे ही इरेगुलर लोगे जैसे आप रहे हो अभी तक, फिर तो कुछ भी कर लो आप, फिर तो नहीं होगा। आप रेगुलर होगे तो आई एम नॉट सेइंग कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। आई एम नॉट मेकिंग दैट क्लेम। If anybody makes that claim, they are lying to you. I generally don't lie to you. The idea here is you will be able to put your best foot forward. जैसे मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि अगर आपने MMP कर लिया तो आपका मेंस हो जाएगा। ये जरूर कर सकता हूं कि इससे बेटर कंटेंट और कहीं नहीं है और इससे बेटर एग्जीक्यूशन भी आपको और कहीं नहीं दिखेगा, बट आपको भी तो आना पड़ेगा ना सर क्लास लेने। अब अगर आप प्रीलिम्स नेविगेटर खरीद के घर पे सो जाओगे और रेगुलरली अटेंड नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, राइट? इट इज इक्वली ऑन यू एंड इक्वली ऑन मी। आई विल नॉट फॉल्टर। अब आपके ऊपर है। ज्योति, तभी तो मैंने कहा था ना, नई चीजें ऐड नहीं करते। शी इज आस्किंग कि सर 2-3 घंटे में मींस होगा कैसे दिसंबर में, मेरे को ऑप्शनल भी पढ़ना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट ऐड न्यू थिंग्स। यार देयर वर 5 months टू कंप्लीट 5 पेपर्स। दिस इज द 6th month। जुलाई से स्टार्ट किया है, राइट? दिस इज द 6th month। तो अब अगर पहले का कोई बैकलॉग है तो वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर सकते हैं, नई चीज यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। आई हैव 6th edition ऑफ लक्ष्मीकांत, शुड आई बाय द न्यू 8th edition? नो। ओके, बैकलॉग्स वाले क्वेश्चन को मैं एड्रेस करता हूं कि मींस में बैकलॉग्स हैं। ये जो मैं आपको दिसंबर में कह रहा हूं दैट स्पेंड 2 to 3 hours डेली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मंथ, दैट यू कैन स्पेंड 2 to 3 hours डेली इन दिसंबर फॉर मींस, ये मैं सिर्फ बैकलॉग्स के लिए ही कह रहा हूं। देयर इज नो अदर रीजन फॉर यू टू स्पेंड टाइम ऑन मेंस नाउ देन टू कवर योर बैकलॉग्स। अगर 5 out of 7 हो गए हैं, मूव अहेड। ये सिर्फ बैकलॉग्स कवर करने की ही बात हो रही है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू डोंट ऐड एनीथिंग न्यू, डोंट डू एनीथिंग न्यू। ये 5 चीजें कवर करो, इनके बैकलॉग्स कवर करो, बस इसी के लिए तो है ये 2-3 घंटे, और क्यों है फिर? गौरव कह रहे हैं मैंने 4 out of 7 पेपर कर लिए हैं, सो एम आई इन अ गुड प्लेस? यस, डिसेंट प्लेस। 2 से 3 घंटे लगाओ, 5th पेपर जितना हो सकता है दिसंबर में करो, एंड देन गिव 2026 अटेम्प्ट। पूजा, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग वो कह रही हैं कि मैंने किसी एक कोचिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ा है। आई नो विच कोचिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, बट मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने किसी कोचिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और आपके टेस्ट के क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं रटवाता नहीं हूँ ना इकोनॉमिक्स में, कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ। अब वही दिक्कत है। लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है। रट के आगे बढ़ने से बात नहीं बनती है इकोनॉमिक्स में, आपने मेंस में भी देख लिया होगा। तो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कंसेप्चुअल है। कोई कह सकता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ रटवाना है। नाउ दैट इज अप टू यू। मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस भी मैं कंसेप्चुअली ही पूछता हूं। देयर इज नो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग 11th and 12th क्लास एनसीईआरटी जिसमें ग्राफ्स ना हो। ओके, नाउ यू कैन स्टडी the way every economics textbook in the world is teaching, or you can mug up and go ahead, and that's up to you. राज कह रहा है I have cleared prelims twice before. राज, अगर आपने prelims पहले क्लियर किया है तो आप जनवरी में ट्रांजिशन कर सकते हो। You can study for means in December, that's fine, क्योंकि आप you know what to do. Current affairs and CSAT not in PNP schedule. आज तो ऐसा हो नहीं सकता, राइट, कि ना हो। आप अगर शेड्यूल ध्यान से देखोगे, शेड्यूल में कई बार 2 चीजें साथ में लिखी हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, सीसैट की 2 बैचेस करेंगे हम, एक दिसंबर में एक मार्च में। यू कैन फॉलो ईदर, राइट? तो ऐसा, मतलब मुझे पता है, मैंने खुद लेना है यार करंट अफेयर्स, मुझे पता है मैंने जनवरी में पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। निधि कह रही है कि सर शुड वी डू सम अदर क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो? 20 वीक्स तक 400 क्वेश्चंस पर वीक तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम और क्वेश्चंस भी करें? आई लव योर एंथुसियाज्म निधि, बट हो नहीं पाएंगे ऑनेस्टली। यही कर लो, दिस वुड बी फाइन। आयशा कह रही है सर माय ऑप्शनल क्लासेस आर लेफ्ट नाउ, हाउ टू मैनेज? जस्ट मैनेज इन दिसंबर में खत्म करिए। इज इट नेसेसरी टू मेक हैंड रिटन नोट्स फॉर प्रीलिम्स? आई वुड से नॉट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, बिकॉज वो सब्जेक्ट्स आप उन बुक से कई बार पढ़ चुके होंगे, बट फॉर द सब्जेक्ट्स वेयर देयर इज नॉट वन defined source, handwritten notes generally work better.
जैसे लक्ष्मीकांत अगर आप इतनी बार पढ़ चुके हैं तो शायद उससे भी काम चल जाएगा. गुरअमृत इज सेइंग दैट सर लास्ट ईयर साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट वाज वेरी टफ in prelims. ठीक है, let's talk about it. Science and tech I won't say was tough. Science and tech there were 8 questions. I think 5 were solvable. All 5 were also solvable from PRP. Environment was butchered last year. कुछ नहीं कर सकते यार, एक सब्जेक्ट खराब है एक साल. There's not a lot we can do. They did not ask national parks. They did not ask species last year. They did not ask any environmental laws last year. And they asked very less questions from environment. And जो पूछे भी वो बहुत अजीब थे और वो किसी को नहीं आते थे. देखो जब वो टफ क्वेश्चंस होते हैं उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, राइट. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मान लो उन्होंने लास्ट ईयर कोई नेशनल पार्क्स नहीं पूछे, कुछ स्पीशीज नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछा, तो क्या इस साल हम नहीं पढ़ के जाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है नो. वी विल रीड इट दिस ईयर ऑल्सो, राइट. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. कोई एक सब्जेक्ट हर बार बुकचर होता है एंड तभी मैं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करो. इस बार हो सकता है वो पॉलिटी बहुत टफ बना दे. प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एनवायरनमेंट पढ़ते ही बहुत कम लोग हैं, तो जब एनवायरनमेंट का टफ क्वेश्चन आते हैं तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. पॉलिटी सब पढ़ के जाते हैं. अगर पॉलिटी का टफ क्वेश्चन आ गया किसी साल, जैसे एक बार आए थे 2023 में, तो 75 हो गया था कट ऑफ, राइट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी अबाउट दैट. सौजन्य GS1 की क्लासेस हम लेंगे ना दिसंबर में. ओ बाय द वे, आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको कह रहा हूं और कुछ ना ऐड करने के लिए. एज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी वी विल कंप्लीट ऑल आवर क्लासेस. GS1 classes will happen in December as scheduled. I think most of your questions are answered. From 9th December we will start focusing completely on prelims. Again, before I go, I'd just like to thank you all for the effort that you guys have put in over the last 5 months. I'm sure that not only has it resulted in you using your time more efficiently, it has also meant that you are now well prepared or more than well prepared, and you don't feel fear when you look at a mains question. ये same approach अब हमें prelims के लिए develop करनी है. My last message to you is again that please don't waste these 2 months of December and January. These are the most critical months to protect the lead that you guys have already built. You already are ahead. Let's not waste that advantage and let's ensure that we get the best possible outcome from this. Okay. We'll be uploading a video on a 5-month schedule either on Sunday or Monday on YouTube. जहां ये 5 month का पूरा schedule होगा. That schedule will be the schedule that I follow in step. That schedule will be the schedule that I sync with Prelims Navigator Batch 2 also, right? So that will all be in sync and we'll announce all of that by this weekend. We'll be starting the second batch on Monday and the third batch in January, and whatever you feel comfortable with, you can go for. But my strong recommendation, if you've not cleared prelims before, is to not come in a tension in those 3 months of Jan, Feb, March and have this extra month of December to help you. That's all I had to say. Please read these things again. That one, don't add new sources unless absolutely necessary. Let's try and complete our syllabus, the first reading and a complete revision of our syllabus by 31st March, so that we can revise everything in April and May. And in April and May, we can ensure that we do 3 more revisions so that we are very well prepared for prelims. We will not do random preparation. We will ensure it is structured. We will have a monthly plan, a daily plan, and a revision plan at the end of every week. We will have daily tests and weekly tests at the end of the week. Daily test every day of 25 MCQs, weekly test of 100 MCQs at the end of the week. PYQ session every week, live mentorship sessions every week, live MCQ sessions every week, active recall sessions every week, and current affairs and CSAT also included. Right? So we have at least planned it in such a way कि आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए. And basically the idea was that आप किसी चीज की टेंशन ना लो and you can put your best foot forward, right? आपको सिर्फ पढ़ना है and you don't have to worry about everything else. You leave the rest of the worries to me. That was the idea. That being said, I don't think there are any more unique questions. Same questions repeat हो रहे हैं. So I'd like to thank you for your time today and I hope you've had a good experience over the last 5 months. And yet again, I'd just like to end by congratulating you on the fact कि आपने 5 महीने वेस्ट नहीं किए.
मोस्ट एस्पिरेंट्स ने ये 5 महीने वेस्ट किए हैं। मुझसे कई लोग की बात हुई है, कोई लोग मिलने आए हैं, एंड most of the people have said who have not studied in the last 5 months, they are now shouldering a huge burden of regret. You have only faced the pain of discipline, but in retrospect it always looks good. अब पीछे देखोगे अपनी जर्नी को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने बहुत एफर्ट किया, राइट, एंड इट वर्कड आउट वेल फॉर मी, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ठीक है, सी यू गाइज ओवर द वीकेंड, बाय बाय।